میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ان الدین عند اللہ الاسلام میں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ بس 2 سے 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حضرت علامہ مولانا فضلہ تشریف لائیں گے اور مکمل انداز میں آپ حضرات کو خطاب جو ہے فرمائیں گے۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں ولی ہوتا کون ہے اور ولی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں پاک پروردگار عالم اگر چاہ لے، ایک زمانے میں، ایک وقت میں، ایک گاؤں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ولی کو پیدا کر سکتا ہے۔ ایک زمانے میں، ایک وقت میں ہزاروں ولی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ولیوں کی جماعت، اور ایک ہوتا ہے ابدال کی جماعت، اور ایک ہوتا ہے قطب کی جماعت۔ یہ سب باتیں جو ہیں جب کہیں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بیان کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ ایک ولی کی جماعت ہوتی ہے، اور ایک ابدال کی جماعت ہوتی ہے، اور ایک قطب کی جماعت ہوتی ہے۔ ویسے آپ حضرات کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے خاص کر کے کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے آپ حضرات کا فائدہ ہو، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ بس 2 سے 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، بڑی تیزی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے ولیوں کی جماعت، اور ایک ہوتی ہے ابدالوں کی جماعت، اور ایک ہوتی ہے قطب کی جماعت۔ ایک وقت میں، ایک زمانے میں، ایک گاؤں میں لاکھوں نہیں کروڑوں ولی ہو سکتے ہیں ایک وقت میں۔ اور ابدال 40 ولیوں کے بعد 40 ولیوں کی جماعت پر 40 ولیوں کی جماعت پر پاک پروردگار عالم ایک ابدال پیدا فرماتا ہے۔ 40 ولیوں کی جماعت پر پاک پروردگار عالم ایک ابدال پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ابدال ایک ہیں یا ڈبل ہیں، بلکہ 40 ولیوں کی جماعت پر جس جگہ 40 ولیوں کی جماعت مکمل ہو جائے گی تو اس جماعت پر ایک ابدال پیدا ہو جائے گا۔ جس طرح سے مثال کے طور پر اگر مان لیا جائے ہمارے اس محلے میں اگر اللہ کی عطا سے 40 ولی پیدا ہو جائے تو ان 40 کی جماعت پر ایک ابدال پیدا ہو جائے گا، اور دوسرے گاؤں میں ایک ہی وقت میں 40 ولی پیدا ہو جائیں تو ان کی بھی جماعت پر پاک پروردگار عالم ایک ابدال پیدا فرما دے گا۔ لیکن قطب جو ہے ایک زمانے میں، ایک وقت میں ایک ہی قطب ہوا کرتا ہے۔ یہ چند اور دو نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی قطب ہوا کرتا ہے۔ تو قطب اور ابدال اور ولیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے غوث اپنے وقت کے قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں اور ولی بھی ہیں، لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاک پروردگار عالم نے صرف ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ولیوں کی جماعت پر پاک پروردگار عالم نے ان کو ولایت سے نوازا۔ ہمیں اور آپ کو ولیوں کے دامن سے ملتا کیا ہے؟ ولیوں کی بارگاہ میں ولیوں کے دامن کو پکڑنے سے ہمیں اور آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، مزار پہ جا کر شیرینی فاتحہ کرتے ہیں، اور ان کی نسبت سے جڑی ہوئی چادر کو ہم اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں، ان کی نسبت سے، ان کی قبر سے جڑی ہوئی چادر کو اٹھاتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں لگا لیتے ہیں۔ ان کی قبر سے جو پھول ٹکرا جاتے ہیں ان پھولوں کو ہم اٹھا کر کے اپنی آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، اپنے جیب میں رکھ کر کے اپنے گھر اور پریوار کے بیچ میں لا کر کے اس کو ہم تقسیم بھی کر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کی نیتیں کیا ہوا کرتی ہیں یہ تو لوگ جانیں گے، لیکن جب میں کسی اولیاء اللہ کے مزار پر جاتا ہوں اور وہاں سے جب کوئی پھول کا ٹکڑا اٹھاتا ہوں تو اپنی جیب میں یہ سوچ کر کے رکھ لیتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم کی عطا سے ولیوں کے دامن سے جو پھول لگ چکا ہے، اگر اس پھول کو میں کھا لوں گا تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے ساری کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں ڈالنے کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا یوسف علیہ السلام اپنے وقت کے جو ہے وہ مصر کے بہت بڑے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر کے جو ہے ان کی آنکھ نابینا ہو جاتی ہے، ان کے آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔
रो रो करके उनके आँख की रोशनी खत्म हो जाती है, उनकी आँख से कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में जिंदा है और रो रो करके जो है उनके आँख की रोशनी खत्म हो चुकी है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते हैं कि मेरे बाप को किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दो, मेरे बाप को किसी हॉस्पिटल में पहुंचा दो, मेरे बाप को किसी तबीब के पास पहुंचा दो, मेरे बाप को किसी हकीम के पास पहुंचा दो, बल्कि अपने जिस्म से लगने वाले कुर्ते को निकालते हैं और क्या करके भेज देते हैं कि इस कुर्ते को ले जाकर के दे देना, मेरे वालिद गिरामी जैसे इस कुर्ते को अपनी आंख से लगाएंगे उनके आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उस कुर्ते को अपनी आंख पर लगाते हैं उनकी गई हुई रोशनी वापस आ जाती है, उनकी गई हुई रोशनी वापस आ जाती है। ये हवाला कहाँ से मिलता है, ये मकाम कहाँ से मिलता है, ये ताकत कहाँ से मिलती है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन से वो कुर्ता टकरा जाता है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को आगे लेकर के चलता हूँ। बस 2 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा, वरना अगर भरपूर बात तो होता तो बहुत कुछ समझा करके इंशाअल्लाह मैं यहाँ से जाता और मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चला जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने पे एक औरत रहा करती थी, वो पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाती और जाकर के तमन्ना पेश करती, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप पूरे दूर पर जाकर के रब से हम कलाम होते हैं, रब के कायनात से बातें किया करते हैं, आप तो पाक परवरदिगार आलम के बहुत करीबी बनते हैं, आप रब के कायनात से इरशाद फरमा दे कि मेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है, आपकी दुआ से रब की अता से मुझे कुछ औलाद अता हो जाए, मुझे एक औलाद नसीब हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है रब के कायनात की बारगाह में जाते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, रब के कायनात जवाब देता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के नसीब में जो है, उस औरत की तकदीर में कोई औलाद नहीं है, उसके पास कोई औलाद नहीं है, उसकी तकदीर में कोई औलाद नहीं लिखी हुई है, उसकी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, वापस आने के बाद सारा वाकया सुनाते हैं और सारा वाकया सुनाने के बाद जो है वो औरत वहां से चली जाती है। एक जमाना आता है और जमाना आने के बाद जो है उसी औरत के घर के आंगन में जो है चार बेटे जो है चार औलादों से जो है उस औरत के घर का आंगन भर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देख करके हैरान हो जाते हैं, अल्लाहू अकबर, ये तो वही औरत है जो हमारी बारगाह में आकर के दुआएं कराया करती थी, रब के कायनात जवाब दिया करता था। इस औरत की तकदीर में कोई औलाद नहीं है, इस औरत की तकदीर में कोई औलाद नहीं है। आज मैं क्या देख रहा हूँ, इस औरत के आंगन में चार औलादें खेलती हुई नजर आती है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होते हैं, रब की बारगाह में पहुंच जाते हैं और जाकर के अर्ज करते हैं, मौला फला इलाके में एक औरत रहती है, मौला माजरा समझ में नहीं आता है, फला इलाके में एक औरत रहती है, मैंने उसके बारे में सवाल किया था तो तूने जवाब दिया था उसकी तकदीर में कोई औलाद नहीं है। आज मैं देख करके आया हूँ, उसके घर के आंगन में चार बच्चे जो है वो खेलते हुए नजर आते हैं। रब के कायनात पता माजरा समझ में नहीं आता है, रब के कायनात इरशाद फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम जाओ एक वादी में चले जाओ और वादी में जाने के बाद जो है उस वादी के लोगों से जाकर के कह दो, उस वादी के लोगों से जाकर के कह दो कि रब के कायनात ने जो है तुम्हारे जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है। मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में वापस आते हैं और बस्ती वालों से कहते हैं कि रब के कायनात ने जो है तुम्हारे जिस्म से गोश्त का टुकड़ा मांगा है। कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते थे तो अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में जाते थे, जब नेक बंदे की बारगाह में जाते थे जाने के बाद जब अरीज़ा पेश करते हैं वो बंदा छुरी को उठाता है और अपने जिस्म से गोश्त का टुकड़ा काटना शुरू कर देता है और जिस्म के हर हिस्से से जो है गोश्त के टुकड़े को काट करके जो है वो थाली को भर देता है और भरने के बाद कहता है, ऐ मूसा पैगंबर जाओ अपने कायनात की बारगाह में लेकर के जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, मौला सारी वादी को मैंने छान मारा लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन एक तेरा चहेता बंदा भी था। जब उससे मैंने कहा तो उस बंदे ने अपने जिस्म से हर हिस्से से जो है गोश्त का टुकड़ा काट करके जो है वो थाली में रख दिया। माजरा समझ में नहीं आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान फरमाता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अब जानना चाहते हो जो औरत तुम्हारी बारगाह में आकर के वो औलादें मांगा करती थी, वो औलादें मांगा करती थी और मैं जवाब दिया करता था उस औरत के हिस्से में कोई औलाद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम सुनो, जब आपने जवाब दे दिया था उस
है। लोगों से मांगना शिर्क है, बिदअत है। अल्लाह वालों से मांगना हराम है, नाजायज है। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह के मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अपने वक्त के बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे, रब्बे कायनात ने जो है उनकी दुआ को कबूल फरमाई और 4 औलादें अता कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मूसा जो बंदा ऐसा मेरा बंदा मेरी बारगाह में दुआ करे तो मैं ऐसे बंदों की दुआओं को टालता नहीं हूँ, बल्कि उनकी दुआओं को कबूल कर लेता हूँ। बस इससे अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसलिए अल्लाह वालों के दरबार में हम जाते हैं और दुआएं करते हैं, मन्नतें लेकर के जाते हैं। इसी तरह से हमारे और आपके दिल में उनकी मोहब्बत बसी है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत शानदार और जानदार। चंद लम्हों में आपने बहुत खूबसूरत खिताब। जुल्फ क्या चीज है, रुखसार में क्या रखा है, दिल ही बजाए तो संसार में क्या रखा है। जुल्फ क्या चीज है, रुखसार में क्या रखा है, दिल ही बजाए तो संसार में क्या रखा है।